વિગતવાર સમાચારોને તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 2 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ સાંજે ભારત મંડપમ નવી દિલ્હી ખાતે ભારતના સૌથી મોટા પ્રથમ મોબિલિટી પ્રદર્શન ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સપો 2024 કાર્યક્રમને તેમણે સંબોધ્યો। ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સપો 2024 સમગ્ર ગતિશીલતા અને ઓટોમેટિવ મૂલ્ય શૃંખલાઓને પણ ભારતની ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કર્યું। એક્સપોમાં પ્રદર્શનો, પરિષદો, ખરીદનાર વિક્રેતા મીટ, રાજ્ય સત્રો તેમજ માર્ગ સલામતી, પેવેલિયન તેમજ ગો કાર્ટિંગ જેવા જાહેર કેન્દ્રીય આકર્ષણો દર્શાવવામાં આવ્યા। તેમજ 50+ થી દેશોના 800 થી વધુ પ્રદર્શકો સાથે એક્સપો અદ્યતન તકનીકો, ટકાઉ ઉકેલો અને ગતિશીલતામાં પણ સફળતાઓને પ્રકાશિત કરી। એક્સપોમાં 600 થી વધુ ઓટો કમ્પોનન્ટના પણ ઉત્પાદકોની હાજરી ઉપરાંત 28 થી વધુ વાહન ઉત્પાદકોની ભાગીદારી દર્શાવવામાં આવી। 13 થી વધુ વૈશ્વિક બજારોમાંથી 1000 થી વધુ બ્રાન્ડ્સ ઇવેન્ટમાં તેમની સંપૂર્ણ શ્રેણીના ઉત્પાદનો, તકનીકો અને સેવાનું પણ પ્રદર્શન કરાયું। પ્રદર્શન અને પરિષદોની સાથે જ આ ઇવેન્ટમાં રાજ્ય માટે રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક સ્તરે સહયોગને સક્ષમ કરવા માટે પ્રાદેશિક યોગદાન અને પહેલ પ્રદર્શિત કરવા માટે રાજ્ય સત્રો પણ દર્શાવવામાં આવ્યા। ખાસ વાત કરીએ તો ગતિશીલતાના ઉકેલો માટે સર્વગ્રાહી અભિગમને પ્રોત્સાહન અપાયું। ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સપો 2024માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ટ્રક અને ટેક્સી ચલાવતા ડ્રાઈવરો આપણી સામાજિક અને આર્થિક વ્યવસ્થાનો એક અભિન્ન ભાગ છે। ઘણીવાર આ ડ્રાઈવરો કલાકો સુધી સતત ડ્રાઇવિંગ કરે છે, ત્યારે ટ્રક ચલાવે છે અને તેમની પાસે આરામ કરવાનો પણ સમય નથી। કેન્દ્રીય મુસાફરી દરમિયાન ડ્રાઈવરોને આરામ આપવા માટે સરકારે એક નવી યોજના પર પણ કામ શરૂ કર્યું છે અને આ ખાસ યોજના હેઠળ તમામ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર ડ્રાઈવરો માટેની નવી સુવિધાઓ સાથે આધુનિક ઇમારતો બનાવવામાં આવશે। ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સપો 2024માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે તે વચગાળાનું બજેટ હતું। જ્યારે આપણે ત્રીજી વખત સત્તામાં આવીશું ત્યારે સંપૂર્ણ બજેટ આવશે। 2014માં ભારતનો મૂડી ખર્ચ ₹2 લાખ કરોડથી ઓછો હતો, તે આજે વધીને 11 લાખ કરોડથી વધુ થઈ ગયું છે અને આ જાહેરાત ભારતના ગતિશીલતાના ક્ષેત્ર માટે ઘણી તકો લઈને આવી છે। ઉપરાંત સમુદ્ર અને પર્વતોને પડકાર આપી રહ્યા છે અને ત્યારે આ રેકોર્ડ સમયમાં એન્જિનિયરિંગ અજાયબીઓ બનાવી રહ્યા છે। અટલ કહી શકાય તેવી અટલ ટનલથી પણ અટલ સેતુ ભારતના માળખાકીય વિકાસના નવા વિક્રમો સર્જી રહ્યો છે। ત્યારે છેલ્લા 10 વર્ષમાં 75 નવા એરપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે। લગભગ 4 લાખ ગ્રામીણ રસ્તાઓનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें भी इस विजन आपको देख पाते होंगे। ये तो इंटरिम बजट है, पूरा तो आएगा जब हम तीसरी बार आएंगे तब। 2014 में भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च का ऐलान भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेक विद अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था को ताकत देगा बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर बढ़ेंगे। इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भारत में रेल, रोड, एयरपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मॉडल तैयार कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड समय में। अटल टनल से लेकर अटल सेतु तक और ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज भारत में बड़ी संख्या में न्यू मिडिल क्लास बना है।
जिसकी अपनी आशाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। शायद एस्पिरेशन का लेवल उस सोसाइटी में होता है, उस इकोनॉमिकल स्ट्राटा में होता है, वो शायद ही कहीं और होता है जी। जैसे व्यक्ति के जीवन में 14 से 20 साल का कालखंड जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है, वैसा इनके जीवन में होता है। और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं जी। ये न्यू मिडिल क्लास, उसके एस्पिरेशंस, और दूसरी तरफ आज भारत में मिडिल क्लास का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई आय के बीच बढ़ते हुए कुछ आंकड़े आपके सेक्टर का हौसला बढ़ाने वाले हैं। मोदी नहीं, ये आंकड़े। साल 2014 के पहले के 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी। वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही है। पिछले 10 साल में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है। भारत में टू व्हीलर सेल्स भी 70% से ज्यादा बढ़ी है। अभी कल ही जो आंकड़े, आपको भी इस दिशा में जरूर आगे आना चाहिए। साथियों, आज इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों के बीच, मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच, मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या, समय पर क्यों नहीं आया, वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवे पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है।